Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Winsome International School. My name is Shaheen and today we are going to begin with the poem of chapter 3, that is How to Tell Wild Animals. Okay, this poem is also part of your chapter 3, that was two stories about flying. ठीक है, ये उसी chapter की poetry है. Clear? So there are two poetries in this. First one is How to Tell Wild Animals and the next one is the Ball poem. Currently we are doing this poem How to Tell Wild Animals. Now what is the meaning of this title? How to Tell Wild Animals? तो यहाँ पे tell का मतलब ये all लोग बताना होता है, लेकिन यहाँ पे tell का मतलब है identify. Okay? The meaning of tell here is identify. So now I hope अब आप समझ गए होंगे इस टाइटल का मतलब How to identify wild animals. Clear? So this is composed by Carolyn Wells and it is a humorous poem. Clear? यानी कि यहाँ पे जो हमें methods बताए गए हैं wild animals को identify करने के लिए वो हम practically use नहीं कर सकते. Clear? So we have to take it as a humorous poem because उसी mood में poetess ने ये poetry जो है वो compose की है. Clear? All right, let us read something about the poetess who is Carolyn Wells. She was born on June 18, 1862 in the United States. She was a prolific American writer remembered largely for her popular mysteries, children's books and humorous verse. ठीक है, ये उनकी speciality थी, mysteries लिखना, children's book लिखना and humorous verses लिखना, humorous poetries compose करना. Her light-hearted poetry writing was aimed primarily at children. यानी कि basically जो उनकी writings होती थी वो किसके लिए होती थी? बच्चों के लिए. She wrote for almost 40 years and she was a frequent contributor of nonsense verse. This is the name of the verse. ठीक है, जो वो publish उन्होंने किया था उसका क्या नाम था? Nonsense verse. And whimsical pieces to such magazines as The Lark, these are the name of the magazines, children, the Chapbook and the Philistine. Her books include a nonsense anthology, the book of humor, humorous verse, the book of limericks, horror house, murder in the bookshop, etc. All right, so these are a few magazines which she had written. Clear? So you can see that she had almost 40 years of writing experience. So you can imagine कि उनकी लिखने की जो है कितनी ज़्यादा skilled थी, कितनी ज़्यादा efficient poetess थी. Carolyn Wells. Clear? All right. Now we are reading the text. इस poetry का जो text है वो हम passages में stanzas में divided है. ठीक है, हर एनिमल की एक अलग आइडेंटिफाई करने का उसको एक मेथड बताया गया है. एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि ये ह्यूमरस है. ठीक है, एक मजाकिया तौर पे ये सिर्फ पोइट्री लिखी गई है, एक लाइट हार्टेड पोइट्री है, तो हमें उसी लाइट मूड के साथ इसको पढ़ना है. ज्यादा सीरियसली या डेप्थ में नहीं जाना या थोड़ा सा रैशनल नहीं हो जाना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो हमें उतना रैशनल नहीं होना है. क्लियर? बिकॉज दिस इज अ ह्यूमरस पोएम. तो अब यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के इतने अलग अलग और ह्यूमरस मेथड्स बताए गए हैं जो हम प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी उनको फॉलो नहीं कर सकते. ऑल राइट, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट स्टांजा. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. यहाँ पे द पोएटेस इज सेइंग कि अगर बाय चांस आपका ईस्ट के जंगल्स में जाना हुआ, ठीक है. अब लैंग्वेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यू विल फाइंड कि भाई ग्रामेटिकल इट इज नॉट करेक्ट, बट यहाँ पे वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, एक चीज हमें याद रखनी है कि ये जो लैंग्वेज का हेरफेर है या जो वर्ड्स जो है इम्प्रॉपर प्लेसेस में है वो बिकॉज पोएट के पास में पोएटिक लाइसेंस होता है. ठीक है, कि वो अपनी पोएट्री को ब्यूटिफाई करने के लिए अपने स्टांजास को कैसे भी वो एडजस्ट कर सकता है, कैसे भी वर्ड्स को प्लेस कर सकता है, कैसे भी स्पेलिंग यूज कर सकता है, ग्रामर के साथ में कैसे भी वो ही कैन प्ले विद वर्ड्स, ही कैन प्ले विद ग्रामर, तो वो उसके पास वो लाइसेंस है. क्लियर? तो यहाँ पे हमें ये नहीं कहना कि ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बिकॉज दिस इज द वे अ पोएट वांट टू ब्यूटिफाई हिज और हर पोएट्री. क्लियर?
So, यहाँ पे ये जो दो लाइंस है, यहाँ पे द पोएटिस इज एक्सप्लेनिंग कि अगर आपका ईस्ट के जंगल्स में कभी जाना हुआ एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहां ईस्ट के जंगल्स में अगर आपका मिलना हुआ, किससे मिलना हुआ? लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉनी? टॉनी इज अ कलर, ऑलराइट, ब्राउनिश येलो कलर. क्लियर? इट्स अ ब्राउनिश येलो कलर, यानी कि अगर आपको बहुत ही बड़ा और जिसका कलर कैसा हो, ब्राउनिश येलो कलर का वो हो, ऐसा कोई आपको बीस्ट नजर आए, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो आप पे इस तरह से रोर करे, इस तरह से वो दहाड़े, उसका जो मैनर है वो इतना ज्यादा डेंजरस हो, एज यू आर डाइंग, कि बस आपके प्राण पखेरु ही उड़ने वाले हैं, मीन्स आप बस मर ही जाओगे उसकी दहाड़ को सुन के, यू विल नो इट इज द एशियन लायन. आप पहचान जाना कि ये कौन है? एशियन लायन है. ठीक है चिल्ड्रन? सो सी कि पोएटिस ने कितने इजी तरीके से ये बात बोल दी, जबकि प्रैक्टिकली no one would ever try to do this. कोई अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहेगा कि लेट चलो जाके अटेम्प्ट करते हैं या जाके ट्राई करते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है एक एशियन लायन को. तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप मर के देखो या उसके सामने जाके देखो, उसकी दहाड़ सुनो कि आपकी हालत बुरी हो जाए. ठीक है, like as if you are dying, so no one would ever try this. So again I would say कि यहाँ पे पोएट ने बड़े लाइट मूड से इस पोइट्री को एक्सप्लेन किया है, और ये स्टांजा एक इसी तरह से लिखा है कि आप लायन को अगर आपको पहचानना हो, एशियन लायन को, तो क्या करना? कभी आप ईस्ट के जंगल्स में अगर जाएं और अगर आपको वहां पे एक बहुत ही बड़ा सा और ब्राउनिश येलो कलर का बीस्ट नजर आ जाए, बहुत ही बड़ा दानव जैसा कोई नजर आए, और वहां पे इस तरह से दहाड़े कि बस अब आप मरने ही वाले हो, तो पहचान जाना वो कौन है? एशियन लायन है. क्लियर? द प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस इज lion. Clear children? Now you'll see यहाँ पे you will find so many spellings also कि the spellings are either incorrect or they are not proper. Okay, so you'll again I'm telling you that this is due to poetic license. ये poetic license जो है poets के पास में, इसकी वजह से they can use the spellings according to their own comfort level. Clear? कि वो अपनी पोएम को कितना ज्यादा ब्यूटीफाई करना चाहते हैं. तो ऑल राइट, मुझे आई एम श्योर कि आपको ये मेथड तो समझ आ ही गया होगा कि आपको एशियन लायन को कैसे आइडेंटिफाई करना है. क्लियर? ऑल राइट, बढ़ते हैं दूसरे एनिमल के बारे में, वाइल्ड एनिमल के बारे में, कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, कभी आप ऐसे ही घूम रहे हो, लाइट मूड में हो, ऐसे ही घूम रहे हो, a noble wild beast greets you. All right, a noble wild beast greets you. और आपको घूमते घूमते कोई एक ऐसा बीस्ट आ जाए जो आपको वेलकम करे, आपका ग्रीट करे, आपको आपके सामने आ जाए. ठीक है, with black stripes on a yellow ground. yellow ground क्यों? आप अगर इसकी बॉडी देखेंगे तो जो सरफेस है, ठीक है, वो पूरा येलो है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स नजर आ रही हैं. ठीक है, सो ये जो येलो, ये जो इसका सरफेस है पूरा, दिस इज ग्राउंड, येलो ग्राउंड. इस येलो ग्राउंड पे जो ब्लैक स्ट्राइप्स है उसकी बात हो रही है. क्लियर? तो अब आप ऐसे ही घूम रहे हो, लाइट मूड से आराम से घूम रहे हो पार्क के अंदर, अचानक एक नोबल बीस्ट आपके सामने आ जाता है जो आपका वेलकम करने के लिए आपके सामने खड़ा है, और उसकी बॉडी कैसी है कि येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्राइप्स है उसके. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, बस ध्यान रहना कि अगर वो आपको खा लेता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. और अगर आपको वो खा लेता है तो आपको बस उसे पहचान जाना है तुरंत कि ये बंगाल टाइगर ही है. क्लियर? सो टू डिसर्न, डिसर्न मीन्स टू आइडेंटिफाई. अगेन डिसर्न का मतलब भी क्या है? आइडेंटिफाई. आप आराम से पहचान जाएंगे कि ये इट इज नन अदर देन द बंगाल टाइगर. ये और कोई नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है, जिसकी बॉडी जो है वो कैसी है? येलो ग्राउंड है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, और इसने मुझे खा लिया है. तो अब मुझे ध्यान रखना है कि हाँ, अब मैंने पहचान लिया कि वो इट इज द बंगाल टाइगर. क्लियर? सो दो अलग अलग मेथड्स बताएं. एशियन लायन को कैसे पहचानेंगे कि वो बहुत जोर से दहाड़ेगा, और वो कैसा नजर आएगा? बहुत लार्ज होगा, टॉनी होगा, ब्राउनिश येलो कलर का होगा, और
इस तरह से दहाड़ेगा एज इफ यू आर डाइंग, तो पहचान लेना हु इट इज द एशियन लायन। एंड सेकेंडली बंगाल टाइगर का कैसे बताया है कि एक नोबल बीस्ट है, ठीक है, नोबल बीस्ट है, आपके सामने आपका वेलकम करेगा, आपके सामने ही आ जाएगा वो, तो उसको छुपने की जरूरत नहीं है, he'll come in front of you to greet you। एंड उसकी बॉडी कैसी है, येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो बस याद रखिएगा कि जैसे ही वो आपको खा लेता है पहचान लेना कि वो बंगाल टाइगर है। Clear? All right. Talking about the next beast. If strolling forth, what is the meaning of strolling? Strolling means wandering. ठीक है, आप ऐसे ही कहीं घूम रहे हो, टहल रहे हो। So if strolling forth, आप टहल रहे हो एकदम, a beast you view, अचानक आप एक beast देखते हो, whose hide with spots is peppered. Hide का यहाँ पे मतलब है skin, ठीक है, यहाँ पे हाइड का क्या मतलब है, स्किन, जिसकी स्किन जो है वो कैसी है, इट इज कवर्ड विद स्पॉट्स, ठीक है, स्पॉट्स इज पेपर्ड, पूरी कवर्ड है उससे वो, ठीक है, स्पॉट से ही पूरी कवर्ड है। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट, एक्चुअली लेफ्ट की जो रियल स्पेलिंग है वो यहाँ पे क्या, यहाँ पे यूज क्या होना चाहिए, ऑलराइट, इफ ही हैज यूज्ड द पास्ट फॉर्म सो वी विल यूज लेफ्ट, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज की है, LEPT, दिस इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग। सो अगेन आई डोंट हैव टू रिमाइंड यू, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पोएट ने सिर्फ अपनी पोएट्री को एकदम क्लीन और अच्छी बताने के लिए ये स्पेलिंग जो है वो यूज की है। तो यहाँ पे ही द पोएटेस इज सेइंग कि अगर वो आप पे एकदम झपटे, ठीक है, you'll know it is the leopard, आप पहचान जाना, जैसे ही वो आप पे झपटेगा you have to identify कि ये कौन है, लेपर्ड है, उसके अटैक करने के तरीके से आप पहचान जाओगे कि वो कौन है, एक लेपर्ड है। It will do no good to roar with pain, okay, this is for it will, all right, It will do no good to roar with pain, और अगर आप दर्द से चाहे कितना भी रोएं, चिल्लाएं, कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। He'll only leap and leap again. Again यहाँ पे leap नहीं होना चाहिए, यहाँ पे leap होना चाहिए। But again अपनी पोएट्री को ब्यूटिफाई रखने के लिए she has used this spelling LEP. Clear children? So यहाँ पे क्या बताया है leopard के बारे में कि अगर आप किसी ऐसे बीस्ट को देखें जो कि कैसा नजर आएगा, जिसकी पूरी स्किन जो है इट इज गोइंग टू बी कवर्ड विद स्पॉट्स, वो पूरी स्पॉट्स और डॉट्स के साथ में कवर्ड होगी, और जैसे ही आप उसके सामने आएंगे वो आप पे एक अटैक करेगा। उसके अटैक करने के तरीके से आप समझ जाना, द वे इट इज लीपिंग एट यू, समझ जाना कि वो कौन है, वो एक लेपर्ड है। और आप कितना भी खुद को छुड़वाने की कोशिश करें, दर्द से चिल्लाएं, कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज इट इज अगेन एंड अगेन गोइंग टू लीप एट यू, वो बस आप पे अटैक ही करता रहेगा। ये एक लेपर्ड का तरीका है, वे ऑफ अटैकिंग है, जो कि पोएट्स ने यहाँ बताया है, और आपको ये भी बोला है कि दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई इट, उसको पहचानने का तरीका है। ओके, अगेन अ ह्यूमरस वे टू आइडेंटिफाई अ लेपर्ड। क्लियर चिल्ड्रन? ऑलराइट, नेक्स्ट भाई बहुत इंटरेस्टिंग सा एनिमल आ गया है यहाँ पे। when you are walking round your yard, यानी कि आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, मैदान में घूम रहे हैं, you meet a creature there, आप वहां पे एक क्रीचर से मिलते हैं, ठीक है। अब आप अगेन एंड अगेन देखिए कि कोई या तो आपका वेलकम कर रहा है, आप किसी से मिल रहे हैं, और वो एनिमल आपको कब मिल रहा है, या तो आप आराम से जब घूम रहे हैं ना तभी वो आपको एनिमल मिल रहा है, ठीक है। सो आराम से घूमते घूमते आपको एक क्रीचर नजर आता है, who hugs you वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही ज्यादा टाइटली हग करेगा, ठीक है। बी श्योर इट इज अ बेयर, और जब वो क्रीचर आके आपको हग करेगा तो श्योर हो जाना कि ये और कोई नहीं बल्कि एक बेयर है, एक भालू है, ठीक है। बेयर हग इज वेरी फेमस। बेयर हग कब बोलते हैं, जब कोई बहुत ज्यादा टाइटली हग करता है ना, उसको बेयर हग बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे
अ बेयर अटैक्स, बेयर का जो जनरल अटैकिंग का वे है वो यही होता है कि वो अगर इफ आई एम श्योर आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी, दो दोस्त होते हैं रामू और श्यामू, और एक जैसे ही जंगल से वो जा रहे होते हैं तो उन्हें एक भालू नजर आता है, एक दौड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा सांस रोक के लेट जाता है। भालू आता है, उसको स्निफ करता है, उसको लगता है वो मर चुका है, वो चला जाता है। तो बच्चों एक्चुअली में कभी ऐसा हो तो मत करना, बिकॉज भालू कभी आपको स्निफ करके नहीं जाएगा, उसका अलग तरीका है, इट इज गोइंग टू जंप ऑन यू। वो जंप करके चेक करता है कि ये जो भी प्राणी है वो जिंदा है या मरा हुआ है। सो नेवर ट्राई दैट, ठीक है, कभी वो रिस्क मत लेना, क्योंकि दिस एक्चुअली दूर से तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ करेगा या ना करेगा, लेकिन जब पास में कोई भी इसके होता है, चाहे इट इज एन एनिमल या फिर इट इज ह्यूमन, क्या करता है ये, इट ब्रेक्स द बोन्स, ठीक है, इट ब्रेक्स द बोन्स ऑफ द पर्सन और एनिमल, और वो हग होता है जो यूज करके वो ये चीज करता है, ये टेक्निक आजमाता है। क्लियर? तो यहाँ पे वो पोएटेस इसी की बात कर रही हैं कि इफ इट हग्स यू, ये इट विल बी हगिंग यू वेरी वेरी टाइटली, तो पहचान लेना कि ये कौन है, ये एक बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो कि पता नहीं ये कौन सा एनिमल है, कौन सा क्रीचर है, he'll give you just one more caress, वो आपको एक और अफेक्शनेट लविंग हग दे देगा। कैरेस का मतलब क्या होता है, इट इज अ लविंग टच, loving touch, or here we can say an affectionate hug, okay? An affectionate hug. तो ऑब्वियसली वो अफेक्शन वाली तो बिल्कुल भी नहीं होती है, प्यार वाली हग तो बिल्कुल भी नहीं होती है। सो यहाँ पे पोएट जो है उसका जस्ट ऑपोजिट बोल रही हैं कि वो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो फिर भी उसके हग करने के बाद भी कि ये कौन सा एनिमल है, तो डोंट वरी, वो आपको एक और प्यारी सी जादू भरी हग देगा। आपको एकदम श्योर हो जाना है कि हाँ ये कौन है, ये एक बेयर है जिसे मुझे इतनी अच्छे से गले लगा रखा है। क्लियर चिल्ड्रन? Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. Okay? Novice means कोई नौसिखिया, somebody who is new to a job, ठीक है? So novice का मतलब, though it is given in your books children, ठीक है? तो novice का मतलब क्या होता है? Who is new to a job. To you can just look into your books and see. Might nonplus. Nonplus का मतलब क्या है? Confuse. और यहाँ पे भी इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज आपको पता चलेगा कि ये जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइट बी नॉन प्लस्ड, माइट बी नॉन प्लस्ड, ये करेक्ट ग्रामर होती यहाँ पे, लेकिन अगेन पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है और इनकरेक्ट वे में ये ग्रामर जो है वो यहाँ लिखी गई है। सो अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, यानी कि दो यहाँ पे बीस्ट की बात हुई है, प्रे शिकार करने वालों की, दो शिकार करने वाले बीस्ट की बात हुई है कि अगर कोई नौसिखिया है तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए, कोई नया बंदा है तो वो शायद कंफ्यूज हो जाए उनको पहचानने में, ठीक है? डिस्टिंग्विश करना मतलब टू डिफरेंशिएट, राइट? किसी के बीच में पहचान करना, दैट इज डिस्टिंग्विश, टू डिफरेंशिएट। क्लियर? सो अगर वो दो शिकार करने वाले या दो शिकारी, अगर मैं कहूं दो शिकारी है, शिकारी जानवर हैं, उनके बीच में, इन दो जानवरों के बीच में मतलब डिफरेंस करने के लिए कोई भी नया इंसान अगर उनको देखेगा शायद वो कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आप क्रोकोडाइल को टेल, यानी कि फिर से टेल का मतलब यहाँ पे है आइडेंटिफाई। क्लियर चिल्ड्रन? आई एम राइटिंग इट हियर टू, आप किस तरह से एक क्रोकोडाइल के बीच में और एक हाइना के बीच में डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टेक्निक बताई गई है। हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, यानी ये जो हाइनास होती हैं इनके फेस पे एक स्माइल डिस्प्ले होती है। कब? When they swallow their prey, जब वो अपने शिकार को खा जाते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल डिस्प्ले होती है। ऐसा उनका फेस ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि वो मे बी हो सकता है पॉसिबली that they are smiling or they are laughing, लेकिन ये नेचुरल है कि when they swallow their prey, जब वो अपना शिकार खा जाते हैं तो कैसा उनका फेस लगता है, as if they are smiling, ठीक है? But if they weep, means weep का मतलब cry, लेकिन अगर वो रो रहे हैं that means they are crocodiles। तो एक बताया गया है क्या डिफरेंस है कि अगर स्माइलिंग फेस है तो कौन है? हाइनास है, और अगर उनकी आंखों में टीयर्स है, आंसू है, तो वो कौन है? क्रोकोडाइल्स है।
Now children, what happened when hyenas, as I said, when hyenas they devour their prey, उनके फेस पे स्माइल होती है. जब वो अपना शिकार खाते हैं तो उनके फेस पे क्या होती है? स्माइल रहती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब क्रोकोडाइल्स कोई किसी का हंट करते हैं, किसी का शिकार करते हैं, तो उनके आंसू आते हैं जब वो स्वॉलो करते हैं उसको. ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि इस बेचारे को बड़ा दुख हो रहा है. कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू रोना, यानी कि दिखावा करना. सो ऐसा कहा जाता है कि क्रोकोडाइल ये दिखाता है कि उसको वो शिकार खाते हुए बहुत दुख हो रहा है, इसलिए वो रोता है. बट इट्स एक्चुअली साइंटिफिक. ठीक है, ये जो भी रिलेटेड है ये साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड है कि आखिर उसके टीयर्स क्यों आते हैं जब वो अपनी प्रे को स्वॉलो करता है, जब उसको निगलता है तो आंखों में से टीयर्स क्यों निकलते हैं. इट्स ऑल साइंटिफिक. सिर्फ सारा साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे. ऐसा कुछ नहीं है कि उसको दुख होता है या वो दिखावा करने के लिए आंसू बहाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो एक यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया है. आई डोंट नो कि कोई कंफ्यूज होता होगा हाइना को देखे और क्रोकोडाइल को देख के, लेकिन जस्ट इसको थोड़ा सा लाइट ह्यूमर रखते हुए पोएटिस्ट ने ये बताया है कि अगर आपको स्माइलिंग फेस नजर आए किसी बीस्ट का तो वो हाइना है, और अगर आंखों में आंसू नजर आए तो वो कौन है? क्रोकोडाइल है. क्लियर? ऑल राइट. द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल. नाउ दे आर डिस्कसिंग अबाउट अ कैमेलियन. सबने देखा है आई एम श्योर, कैमेलियन जो कलर चेंज करता है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग कैमोफ्लाज हो जाता है. जैसी सराउंडिंग है वैसा ही कलर वो कर लेता है, उसी में ढल जाता है. अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग मींस इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड. कैसा नजर आता है? एक लिजर्ड जैसा नजर आता है. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल. इसके कोई कान नहीं होते. एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही कोई विंग है. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी. यानी कि अगर आपको पेड़ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो मोर लाइकली यू आर लुकिंग एट अ कैमेलियन. यानी कि आपको पता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि कैमेलियन क्या करता है? वो अपने सराउंडिंग से अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है. ठीक है, तो यानी कि अगर आपको पेड़ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि वहां पे एक कैमेलियन बैठा हो जिसने अपना कलर उस पेड़ के अकॉर्डिंग चेंज कर रखा हो. ठीक है बच्चों, so this is another way of identifying a chameleon, and I think this is the safest one. ये safe भी है किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई करना, rather than those 3 जो शुरुआत के बताए गए हैं 3-4, वो तो बड़े डेंजरस थे, कोई सोच भी नहीं सकता उसको ट्राई करना, बहुत दूर की बात है. एंड दिस इज द सेफेस्ट वन कि आपको पता चल जाएगा दूर से ही कि यहाँ पे कोई कैमेलियन है या नहीं है, बिकॉज इट चेंजेस इट्स कलर. ये सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करते हैं. तो पोएटिस्ट ने क्या कहा है? इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है? इट इज द कैमेलियन यू सी. आप एक्चुअली में एक कैमेलियन को देख रहे हैं जिसने अपना कलर चेंज कर लिया है. क्लियर चिल्ड्रन? So these were the animals that we discussed right now. The first one was the Asian lion. Okay. This was the second one. What was it? The Bengal tiger. Then we had a leopard. Then a bear. Crocodile. A hyena. And a chameleon. So today we learned to identify 7 different wild beasts. आज हमने 7 नए जो वाइल्ड बीस्ट है उनको आइडेंटिफाई करना सीखा है. किसके ओपिनियन से? कैरोलिन वेल्स. ठीक है, उन्होंने जिस तरह इस पोएम को ह्यूमरस रखा है उन्हीं के हमने पर्सपेक्टिव से इस पोएम को पढ़ा है. लाइट हार्टेड पोएम है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा उसी वे में पढ़ना है, उसी जोन में एंजॉय करते हुए पढ़ना है. फन पोएम है, ज्यादा डिप्रेसिंग नहीं करना इसको, या इसमें डेप्थ में नहीं चला जाना, क्वेश्चनिंग नहीं करने लग जाना. ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल. ये सारे क्वेश्चंस रेज नहीं करना है. जस्ट दिस इज लिटरेचर नॉट साइंस, सो जस्ट रीड इट विद फन. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज द पोएम. ऑल राइट, लेट अस रीड द समरी नाउ. It is a humorous poem. बार बार याद दिलाया गया है कि it is a humorous poem. The poet suggests some dangerous ways of identifying wild animals. ठीक है, सारे के सारे रास्ते कैसे थे? Dangerous थे. The suggested ways create humor. He says if you ever visit the jungles in the east and you happen to encounter a lion. Okay, so the poet suggests some dangerous ways of identifying wild animals. The suggested ways create humor. She says if you ever visit the jungles in the east and you happen to encounter a lion, a tiger,
or a leopard, you'll be able to identify them by the way they attack you. यानी कि आप किसी लायन से मिलेंगे, किसी लेपर्ड से या किसी टाइगर से मिलेंगे, आप उन्हें कैसे पहचान पाएंगे? वो जिस तरह से आपको अटैक करते हैं. Identifying while dying, the idea makes you laugh. Means मरते मरते पहचानना कि कौन सा जानवर है. So it's definitely a humorous idea. He also tells you to identify a bear from its friendly, hard bear hug, a hyena from its laugh, and a crocodile from its weeping while swallowing its victim. If you see nothing on the tree, then there is a chameleon, as it has the quality to change its color according to its surroundings. यानी कि सारे के सारे animals की बात यहाँ पे हो चुकी है कि आप किस तरह से उनको identify कर सकते हो. Clear, children? All right, let us discuss the poetic devices that are employed in this poetry. इस poetry में जितने भी poetic devices figures of speech use हुए हैं वो हम अब discuss करेंगे. ठीक है, तो हमेशा की तरह पहले बात कर लेते हैं इसकी rhyming scheme पे. तो लास्ट हम इसका वर्ड देखते हैं. चांस ए हो गया, ठीक है. ईस्ट डिफरेंट साउंड है इससे, बी हो गया. एडवांस चांस जैसा लग रहा है, ए हो गया. बीस्ट किसका जैसा साउंड कर रहा है? ईस्ट जैसा, बी हो गया. डाइन एकदम भी डिफरेंट साउंड है इन दोनों से जो हमने डिस्कस किया, सी हो गया. लायन किसके जैसा है? डाइन जैसा है, सी हो गया. ठीक है, सो यानी कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? राइमिंग स्कीम इज ए बी सी सी. दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोइट्री. ठीक है, बाकी जितने भी स्टांजास है यू विल सी कि उनमें भी यही सेम जो है वो राइमिंग स्कीम एम्प्लॉयड है. क्लियर चिल्ड्रन? ऑल राइट, लेट अस सी. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं इसके अंदर. यू शुड, राइट. ऊ साउंड किसका आ रहा है? ऊ. तो जब वाल्स का साउंड आता है एक सेंटेंस के अंदर, ऊ जो साउंड आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है? एसोनेंस होता है. ठीक है, एसोनेंस आ जाएगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ ओ साउंड. ठीक है. To jungles in the east, and if there should to you advance again, should to u. ठीक है, फिर से वो साउंड आ गया तो फिर से क्या है यहाँ पे भी एसोनेंस आ जाएगा. ठीक है. A large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. तो यहाँ पे जो है ये है. उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे कोई भी what do we say, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. फर्स्ट लाइन के अंदर डायरेक्टली सेकंड लाइन में आ गया, फिर यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं, यहाँ पे आ गया. तो ये क्या है? इफ यू रिमेंबर, दिस इज एनजैम्पमेंट. दिस इज एनजैम्पमेंट. ठीक है. इफ मैं दोबारा लिख देती हूं कहां पे एनजैम्पमेंट हम यूज करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन without any punctuation mark. ठीक है, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के दूसरी लाइन पे कंटिन्यू चलते जाना. उस वहां पे क्या होगा? एनजैम्पमेंट होगा. क्लियर? ठीक है. यहां पे भी इफ यू आर गोइंग टू सी rhyming scheme, A B C C. तो rhyming scheme तो सेम ही है यहाँ पे, राइट? ऑल राइट, देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे. roaming round, R. ठीक है, क्या हो गया? एलिट्रेशन. सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है एक ही लाइन के अंदर, तो क्या हो गया? एलिट्रेशन. ठीक है, समझ आया क्यों है एलिट्रेशन? बिकॉज दो कॉन्सोनेंट साउंड्स आ गए यहाँ पे. रोमिंग राउंड, R एक ही लाइन के अंदर, तो वहां पे एलिट्रेशन आ जाएगा. क्लियर? अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. आप उस बंगाल टाइगर को पहचान पाएंगे. इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे तो है पंक्चुएशन मार्क लेकिन यहाँ पे नहीं है. तो बस इन टू लाइंस के अंदर क्या यूज हुआ है?
enjambment यूज हुआ है. I hope I'm not missing out on any other poetic device जो यहाँ यूज हुआ है, जो हम मिस तो नहीं कर रहे हैं. Let's check. He eats you. E साउंड आ गया, क्या हो गया? एसोनेंस. ठीक है. He eats you. अब ये देखिए, ये he है, एनिमल है. एनिमल के लिए इट यूज होता है. एनिमल के लिए क्या यूज होता है? इट यूज होता है. लेकिन यहाँ पे ही आया है, तो यहाँ पे क्या और कौन सा यूज हो गया? फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पे आ गया पर्सोनिफिकेशन. यानी कि अगर किसी भी एनिमल को या ऑब्जेक्ट को ह्यूमंस की तरह उनके साथ में ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे कुछ भी लगाया जाए जो कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होता है, तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन आ जाता है, यानी कि पर्सन की क्वालिटी. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन. तो ही यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे इट होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन. एंड इसी तरह से पीछे भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी था, इफ ही रोर्स एट यू, लायन के लिए आया था, तो यहाँ पे भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, ये भी क्या यूज हुआ है? यहाँ पे personification यूज हुआ है. Clear? All right. If strolling forth a beast you view, again अगर हम बात करें इसकी rhyming scheme की, it is going to remain same, which is A, B, A, B, C, C. ठीक है, यही rhyming scheme है. I'm sure I'm not wrong. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, he has, ह आ गया, alliteration आ जाएगा पहले तो. ठीक है, alliteration आ गया. leapt on you, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे एल स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये यहाँ पे जहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, तो मैं उसको शायद अलग कलर से मैं आपको इसको डिनोट कर देती हूँ. ठीक है, दिस इज फॉर इनकरेक्ट स्पेलिंग. ठीक है, ये यूज हुआ है, तो जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है, इट्स फॉर लेफ्ट. लेफ्ट क्यों यूज हुई है ये भाई? ये रॉन्ग स्पेलिंग कैसे यूज कर ली? हमने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में. बिकॉज ऑफ हिज पोएटिक डिवाइस. ठीक है, क्या यूज किया? पोएटिक लाइसेंस यूज किया उसने यहाँ पे. क्लियर चिल्ड्रन? व्हाट ही हैज यूज्ड? ही हैड यूज्ड she has used poetic license here. Clear children? All right. थोड़ा सा हमारा alliteration यहाँ से इरेज हो गया था, वो भी वापस लिख देते हैं. बिकॉज ऑफ ह साउंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? alliteration भी आ जाएगा. Clear? You'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He'll only lap and lap again. Clear? So I hope यहाँ पे और कुछ नहीं छूटा है. All right. If when you are walking round your ward, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Who hugs? ह आ गया, alliteration आ गया. साउंड पे ध्यान देना चिल्ड्रन, हमेशा ध्यान रखना कि what is important sound. ठीक है, alliteration आ गया. very, very hard क्या हो गया? very, very repetition. और यही सेम पीछे भी था, लेप एंड लेप के लिए भी यहाँ पे, और एक और क्या चीज थी? रेपिटेशन भी था, रिपीट हो गया था 2 बार. ठीक है, बी श्योर इट इज अ बेयर. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he'll give you just one more caress. All right. Is enjambment? Yeah. यहाँ पे और यहाँ पे enjambment भी है. ठीक है, Though to distinguish beasts of prey, a novice might non-plus. यहाँ पे भी आपने देखा होगा incorrect दे रखा है यहाँ पे, right? So I'm marking it with red. Grammatically incorrect है, तो क्या आया यहाँ पे? Poetic license. और rhyming scheme तो children it is going to be the same. ठीक है, rhyming scheme throughout इस poetry की same है, A B C C. ठीक है, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. All right, nothing in this. A true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all.
he hasn't, right? Yes, this is alliteration. And not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. ठीक है, राइमिंग स्कीम सेम है और यहाँ पे सिर्फ एक एलिट्रेशन है जो कि नजर आ रहा है. All right, children. So this was all about today's poetry, जो की थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट वाइल्ड तरीके, डेंजरस तरीके, येट ह्यूमरस. लेकिन ये एक ह्यूमरस मूड में लिखी गई है, सो हमें इसको समझने के लिए भी अपना मूड भी ह्यूमरस ही रखना पड़ेगा, लाइट ही रखना पड़ेगा. क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप दिस पोएट्री वाज क्लियर टू यू. आपको ये पोएट्री समझ आई है, एज हमने सारे कॉन्सेप्ट्स, इसके सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, हर लाइन हर वर्ड सब कुछ हमने डिस्कस किया है. आई एम श्योर अब ये पोएट्री आपके लिए एकदम एक बर्डन नहीं रहेगी एंड इट इज गोइंग टू बी क्वाइट ईजियर फॉर यू. ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर 3 की जो दूसरी पोएट्री है, दैट इज द बॉल पोएम, वो हम कवर करेंगे. टिल देन keep learning, keep growing with Winsome International School. Take care. Goodbye.